Hello students, we have done previously the three methods for redemption of debentures. One was redemption in lump sum, second was redemption by lots, third was redemption by conversion. Now we are here with the fourth method. In this video I am going to explain you how to redeem the debentures by purchasing from the open market. See what happens when the company wants to purchase its own debenture, it can directly purchase it from the open market, from any of the debenture holder in the open market. And when the company is purchasing it, it can be done with two options. The company always has two options. So I've written here two options. The purchase of debentures for immediate cancellation and the purchase of debentures as investment. First is the purchase of debentures for immediate cancellation. So whenever the company is purchasing, you will be given in the question as to debentures are being purchased for immediate cancellation or as investment. If nothing is mentioned, you can treat it as immediate cancellation. Okay. So if it is for immediate cancellation, what you will do, simply debit the debentures. All right. Because we are cancelling the debentures. Cancelling means जब हमने इशू किए थे तो हमने उसको क्रेडिट किया था डिबेंचर्स को, अब उनको कैंसिल करना है तो डेबिट कर देंगे डिबेंचर्स को. तो जिस तरह से सिंपल आपकी रिडेम्पशन की एंट्री आती है, बिल्कुल उसी तरह से एंट्री होगी आपकी. डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, जितने से आपकी फेस वैल्यू है, वॉट एवर इज द फेस वैल्यू ऑफ योर डिबेंचर, आप यहां पर 100 रुपी लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केट से जो वो डिबेंचर खरीदे वो आपने 96 पर खरीदे. दिस मीन्स आपको फायदा हो गया. 100 रुपए वाला डिबेंचर आपको कितने में परचेज करना पड़ा? 96 में, विच मीन्स यू हैड अ प्रॉफिट ऑफ ₹4. सो योर एंट्री बिकम्स डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक विद ₹96 to profit on redemption of debenture, and this is a capital reserve, capital profit, capital nature of the profit. So this profit on redemption of debenture is credited to capital reserve. In many of the books it is directly also written as debentures to bank to capital reserve, but this one is the better method. So debentures to bank, debentures with face value, to bank with the amount which is paid, to profit on redemption of debenture, and then profit of debenture, redemption of debenture is credited to capital reserve account. Okay, so this was the first method wherein simply we will make these two entries. जितने के debentures purchase किए वो to bank में जाएगा और फेस वैल्यू आएगी डिबेंचर्स में. Then after that is as investment. What the companies do normally, they purchase the debentures in the open market. Okay, purchase करके रख लिए, ठीक है. अब रख लिए लेकिन उनको कैंसिल नहीं किया, वो हमारे पास आ गए हैं. जब मर्जी हम उनको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब मर्जी हम उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है. नाउ इस केस में द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, पहली चीज इनकी एंट्री. इनकी एंट्री क्या होगी? नाउ आर यू कैंसलिंग द डिबेंचर्स इमीडिएटली? नो, यू आर नॉट. तो इसकी जगह आप उनको एज इन्वेस्टमेंट अगर खरीद रहे हो तो उनका जो नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ओन डिबेंचर्स, ठीक है. बिकॉज दीज आर, नो डाउट यू आर द इशुअर ऑल्सो एंड यू आर द ओनर ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो हियर. ऑलराइट, आपने अपने आप को खुद को ही पेमेंट कर दी, ठीक है. कैसे? आपने वो डिबेंचर रख लिए, ठीक है. आपने वो डिबेंचर रख लिए. अब क्या होगा? नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डेबिटिंग ऑन डिबेंचर्स अकाउंट एंड यू आर क्रेडिटेड बैंक अकाउंट. जस्ट सी व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल आपने डिबेंचर खरीदे 96 रुपए पे, ठीक है. तो डिबेंचर्स की जो आपकी एसेट साइड है उसमें 96 रुपया बढ़ गया ओन डिबेंचर्स और उसमें 96 रुपया कम हो गया बैंक में से. कैन यू सी द इफेक्ट इज नील? हाउ इट हैज हैपेंड, जस्ट सी. कंपनी ने ये जो डिबेंचर्स खरीदे हैं, ये डिबेंचर्स क्या खत्म हो गए हैं? नहीं खत्म हुए. तो यहां पर एज इट इज जो आपके डिबेंचर शो हो रहे थे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज नजर आएंगे. द ओनली डिफरेंस विल बी बैंक खत्म होके क्या बन गया? ओन डिबेंचर. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन ओन डिबेंचर को खत्म कर दिया. इन ओन डिबेंचर्स को वी विल बी converting it into the, we will be cancelling this debentures with own debenture. How about it? We shall be proceeding. Just see what we will do first. हम own debentures को डेबिट करेंगे. own debentures को डेबिट कर दिया because it is an investment, ठीक है. इन्वेस्टमेंट है तो उसको डेबिट किया 96 से, जितने कॉस्ट प्राइस से हमने वो खरीदी, ठीक है, विद परचेज प्राइस टू बैंक. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. जब हम करेंगे इनको कैंसिल, जब इनको कैंसिल करेंगे तो पहली बात तो डिबेंचर्स को डेबिट करना पड़ेगा. जो यहां डिबेंचर शो हो रहे थे हमारे, अब हम इनको करेंगे डेबिट, ठीक है. अब अगर इनको डेबिट करना है तो वो किससे करना है? फेस वैल्यू से, विद द नॉमिनल वैल्यू. ओके, आर वी पेइंग देम नाउ?
नो, वाई? बिकॉज पेमेंट तो पहले ही कर दी थी जब हमने बैंक में से पैसा निकाल दिया था। इसकी जगह इसको पे करने के लिए यूज किसको करेंगे? ओन डिबेंचर्स को। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री? यहां से डिबेंचर्स खत्म हो जाएंगे और यहां से ओन डिबेंचर्स खत्म हो जाएंगे। आई रिपीट इट वंस अगेन, फर्स्ट एंट्री में हमने क्या किया? ओन डिबेंचर परचेज कर लिए, तो ये ऐड हो गया। बैंक में से पैसा पे कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप था। ओन डिबेंचर यहां लिख दिया बैलेंस शीट में और यहां बैंक में से पैसा कम हो गया। जब सेकेंड स्टेज आएगी, जब इनको कैंसिल करेंगे, तो यहां जो डिबेंचर शो हो रहे थे ये खत्म हो जाएंगे और उधर से ये ओन डिबेंचर खत्म हो जाएंगे। व्हाट विल बी द एंट्री? डिबेंचर्स विल बी डेबिटेड विद फेस वैल्यू, ओन डिबेंचर विल बी क्रेडिटेड विद सेम प्राइस जितने से उसको डेबिट किया था 96। यहां 100 रुपया आएगा। डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे 100 से, टू ऑन डिवेंचर 96, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 4 रुपए और ये प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, what is the difference between these two methods? Just try to understand very clearly. यहां पर हम सिंपल एंट्री करेंगे। क्या? डिबेंचर्स को जिस तरह से कैंसिल किया जाता है, डिबेंचर्स टू बैंक, जितने पैसे पे किए और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करके बाकी प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। ये तो सिंपल चीज है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमने क्या किया? हमने इन्वेस्टमेंट की तरह उसको परचेज कर लिया। तो अगर इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज किया तो परचेज करने की एंट्री होगी ओन डिबेंचर्स टू बैंक। ठीक है, ये एंट्री ओन डिबेंचर्स टू बैंक। फिर आपको बताया होगा कि जो डिबेंचर हमने 31 मई को खरीदे थे उसको हमने 30 सितंबर को कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने टाइम आप ये एंट्री पास करोगे। कैंसिल करना है तो डिबेंचर्स होंगे डेबिट, ओन डिबेंचर्स हो जाएंगे क्रेडिट। जो आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देना है, बाकी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये कैपिटल रिजर्व में चला जाना। आई होप द video is clear. In my next video, I shall be taking up a question relating to redemption of the debentures with immediate cancellation. All right. Thank you.